सच में परमेश्वर ने मेरी दुर्दशा में मेरी सुधि ली। His mercy endureth forever. उसकी करुणा सदा की है। I was born and brought up in a non-Christian family, एक गैर मसीही परिवार में मेरा जन्म और पालन पोषण हुआ and I was brought up in that way. और उसी रीति से मेरे को बढ़ाया गया। But my father had a friend परंतु मेरे पिता का एक मित्र था who was of this fellowship, जो इस संगति में सदस्य था, and he was telling about Jesus to my father. और वो मेरे पिता से यीशु के विषय में कहा करता था। But my father had never accepted Jesus. लेकिन मेरे पिता ने कभी भी यीशु को ग्रहण नहीं किया था। We were so much deeply in our own way. हम अपने ही रीति रिवाज में बहुत गहराई से पाए जाते थे। It so happened that when my younger sister, she was 4 years old, लेकिन एक बार ऐसा हुआ जब मेरी छोटी बहन 4 साल की थी, she used to suffer from fits. वो फिट्स की बीमारी से कष्ट उठाती थी। And one day it so happened that when she got the fits, her body turned to be blue. और एक दिन ऐसा हुआ कि जब उसे फिट्स का दौरा लगा तो उसका शरीर एकदम नीला पड़ गया। And my parents thought her to take to the hospital. और मेरे माता पिता ने उसे अस्पताल में ले जाने के लिए सोचा। But as my father was holding her in his hand, he saw that she was dead already. लेकिन जैसे मेरे पिता बेटी को हाथ में थामे हुए थे, उन्होंने पाया कि बेटी मर चुकी है। Immediately my father had a recollection of the things which that brother has said. तुरंत ही उस भाई ने मेरे पिता से जिन बातों को कहा था उसके बारे में उन्हें याद आया। He remembered one thing, that Jesus can raise up the dead. उन्होंने एक बात याद आई कि यीशु मरे हुओं को जिला सकता है। In that very moment my father remembered the name of Jesus. उसी क्षण में मेरे पिता ने यीशु के नाम को याद किया। In that very moment my sister, she gave a sneeze and her body turned to be a fresh body और again. उसी क्षण मेरी बहन ने एक छींक मारी और उसका शरीर दोबारा ताजा हो गया। Today she is married and she has 2 children. She has never got that fist and she is so hale and healthy. आज वो विवाहित है, उसके 2 बच्चे भी हैं और कभी भी उसे दोबारा ऐसे फिट्स के झटके नहीं आए हैं। That very day when Jesus healed her, जिस दिन यीशु ने उसे चंगा किया, it was a permanent healing for her. वो उसके लिए सदा की चंगाई थी। But my father never realized that Jesus is a living God. लेकिन मेरे पिता ने कभी भी समझ नहीं पाए कि यीशु जिंदा परमेश्वर है। So they were going on in that way. इसलिए वे उसी रीति से बढ़ते रहे। But it so happened that one of the servants of God from this fellowship started visiting our house. लेकिन ऐसा हुआ कि हमारे इस संगति के एक परमेश्वर के सेवक हमारे घर में मुलाकात के लिए आया करते थे। And on a particular day, my father told that servant of God that hereafter you should never enter into this house and tell about this. और एक दिन मेरे पिता ने उन सेवक से कह दिया कि आगे से आप कभी भी हमारे घर में आकर इस सच्चाई के विषय में नहीं कहना चाहिए। But that servant of God, when he turned from the house, he told Jesus is a living God. लेकिन वह परमेश्वर का सेवक जब घर से वापस जाने के लिए फिरा तो ये कहते हुए गया कि यीशु जिंदा परमेश्वर है। Immediately my parents told, if Jesus is a living God, he must reveal to us. तुरंत ही माता पिता ने सोचा कि यदि यीशु जिंदा परमेश्वर है तो हमारे ऊपर प्रकट होना चाहिए। That very same night, my parents had the vision of Jesus Christ. उसी रात को मेरे माता पिता ने यीशु का दर्शन प्राप्त किया। Jesus revealed unto them as a living God. यीशु ने जिंदा खुदा होकर अपने आप को उन पर प्रकट किया। He said, I am the way, life and truth. उसने कहा कि मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। And there is no other God in this earth. और इस पृथ्वी पर और कोई परमेश्वर नहीं है। When my parents accepted Jesus Christ as a personal Savior, I was 10 years old. जब मेरे माता पिता ने प्रभु यीशु को अपना निजी मुक्तिदाता होकर स्वीकार किया तब मैं 10 वर्ष की आयु की थी। So we started going to the church which is at Gwalior. इसलिए हम ग्वालियर की कलीसिया में जाने लगे। When I had gone there, I was very small. I knew nothing about Jesus. जब मैं वहाँ गई तब बहुत छोटी थी और यीशु के विषय में कुछ भी नहीं जानती थी। Only one thing I could understand, that Jesus is love. केवल एक ही बात मैं समझती थी कि यीशु प्रेम है। And I accepted Jesus Christ as a God of love. और मैंने यीशु को प्रेम का परमेश्वर होकर स्वीकार किया। In that very same year, we had come to the convention in Delhi in this sort. उसी वर्ष में दिल्ली के सम्मेलन में हम भाग लेने के लिए आए हुए थे। As I was very small, I have never seen a gatherings of this sort. मैं बहुत छोटी होने के कारण इस प्रकार की एक मंडली का इकट्ठे होने को मैंने कभी नहीं देखा था। When I had come here, when I saw this gathering, I felt that this is heaven. जब मैं यहाँ आई और यहाँ एकत्रित लोग देखा तो मुझे लगा कि ये स्वर्ग है। And moreover, during the night times when they had the tarrying meeting, इतना ही नहीं, जब रात के समय में बाट जोड़ने की सभाएं चलाई जा रही थी, on Thursday and Friday, my parents went and sat there. गुरुवार को और शुक्रवार को मेरे माता पिता जाकर उस सभा में बैठ गए। But I was ignorant even of the word called tarrying meeting. परंतु मुझे ये इंतजार सभा नहीं तो बाट जोड़ने की सभा, ये नाम से भी मैं अनजान थी। So I used to watch my parents sitting there and other people's crying for something. इसलिए मेरे माता पिता को और अन्य लोगों को वहाँ बैठकर किसी बात के लिए रोते हुए मैं देखती थी।
On the Saturday, I don't know what made me to go and sit there. I also went and sat there and started crying. शनिवार को मैं नहीं जानती कि किस कारण से मैं भी वहाँ जाकर बैठ गई, लेकिन मैं भी वहाँ एक कोने में जाकर बैठ गई. And I was crying. I don't know for what I was crying, but I was crying for the thing which other people were crying also. और मैं रो रही थी, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मैं किस लिए रो रही हूँ, लेकिन जैसे दूसरे लोग किसी बात के लिए रो रहे हैं वैसे ही मैं भी रोने लगी. In that very tiring meeting, the Lord filled me with the Holy Spirit. उसी इंतजार सभा में परमेश्वर ने मुझे पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया, With the sign of unknown tongue. अन्य भाषा के चिन्ह के साथ अभिषेक किया. So the love of God was deeply rooted in my life. परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में गहराई से जड़ पकड़ने I लगा. started loving my Jesus more and more. मैं अपने यीशु से अत्यधिक प्रेम करने लगी. I studied the Sunday school. मैंने संडे स्कूल पढ़ा. I came to know about the doctrines and the truth of this fellowship. मुझे इस संगति की सच्चाई और उपदेश के विषय में ज्ञात हुआ. I obeyed to the waters of baptism. मैंने पानी के बपतिस्मे में आज्ञा मानी. But one thing came across my life, that I was loving my Jesus, but I didn't know that I should not love anyone else more than Jesus. मैं एक बात अपने जीवन में पाई कि मैं यीशु से तो प्रेम करती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि क्या मैं किसी और को भी उससे अधिक प्रेम कर सकती हूँ कि नहीं. It so happened that I loved my father too much. ऐसा था कि मैं अपने पिता से अत्यधिक प्रेम रखती थी. But on particular day, my father departed from this earth. लेकिन एक खास दिन में मेरे पिता इस पृथ्वी से गुजर गए. That was a great blow in my life. वो मेरे जीवन में एक बड़ा धक्का था. It turned my life. वो मेरे जीवन को बदल डाला. I stopped going to church. मैंने चर्च जाना बंद कर दिया. I stopped reading Bible. मैंने बाइबल पढ़ना बंद कर दिया. I felt something has happened in my life. मुझे ऐसा लगा कि मेरे जीवन में कुछ घट गया है. I felt that this world is vanity. मैंने महसूस किया कि ये संसार एक माया है. So I wanted to end up my life. इसलिए मैं अपने जीवन को समाप्त करना चाहती थी. But Satan took advantage of me. शैतान ने उसका फायदा उठाया. And nearly more than 1 month, I used to suffer from a voice. It used to speak to me saying that you are a fatherless child. और करीब 1 महीने तक मैं ऐसे उठा रही थी कि शैतान मेरे कान में ऐसे गूंजता था कि तू पिता रहित नहीं तो अनाथ बची है. Because I stopped praying and everything, the Satan took advantage and he started speaking to me. मैंने प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना बंद कर दिया. इस बात का शैतान ने फायदा उठाया और वो मेरे साथ बात करने लगा. So one particular day when I was troubled with this voice saying that I am a fatherless child, एक खास दिन में जब मैं इस आवाज के कारण सुन के थक चुकी थी कि मैं एक अनाथ या पिता रहित बच्ची हूँ, opening my mouth I confessed saying that Jesus, you are not the living God, you are the murderer. अपने मुंह को खोलकर मैं ऐसे इकरार करने लगी कि यीशु तू जिंदा परमेश्वर नहीं परंतु तू हत्यारा है. As soon as I uttered this word, I became mad. जैसे ही मैंने ये शब्द अपने मुंह से निकाले, मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं पागल हो रही हूँ. But my loving God loved me so much. लेकिन मेरे प्रेमी परमेश्वर ने मुझसे अधिक प्रेम किया. The love which was deeply rooted in my heart spoke to me. वह प्रेम जो मेरे हृदय की गहराई में जड़ पकड़े हुए था, वो मेरे साथ बात करने लगा. It made me to realize that the word which I have uttered is wrong. You have to confess and ask pardon immediately. और उसने मुझे ये महसूस करवाया कि जो शब्द मेरे मुंह से निकले ये गलत है और इसके लिए मैं उसके सामने इकरार करना है. Immediately I confessed. This all happened within a moment. तुरंत ही मैंने उसके बारे में इकरार भी कर लिया और ये सब कुछ एक क्षण में संभव हो गया. Immediately I heard a sweet voice which is so fresh even today in my ears. तुरंत ही मैंने एक मीठी मधुर आवाज को सुना जो आज भी मेरे कानों में एकदम ताजी है. I am your eternal loving Father. मैं ही नित्य प्रेमी पिता हूँ. I am not a dead God. मैं मरा हुआ परमेश्वर I नहीं हूँ. never die. मैं कभी मरा नहीं. I have loved you with an everlasting love. मैंने तुमसे नित्य प्रेम से प्रेम किया है. From that very day, my life was changed. उसी दिन से मेरा जीवन परिवर्तित हो गया. I loved my Lord like anything. मैं अपने प्रभु से अत्यधिक प्रेम करने लगी. Because I loved my Lord, the Lord blessed me in all my ways. मैं अपने प्रभु से प्रेम करने लगी, इसलिए परमेश्वर ने मेरे सारे मार्गों में मुझे आशीष दी. Lord blessed my studies. परमेश्वर ने मेरी पढ़ाई को आशीष किया. And whatever I did, the Lord made it to prosper. और जो कुछ भी मैंने किया उसमें प्रभु ने मुझे सफलता प्रदान की. And God spoke to me that you are for this ministry. और परमेश्वर ने मेरे साथ बात की कि तुम इस सेवकाई के लिए हो. God has always told me, always I used to hear a voice saying that I have given my life for you. What are you going to do for me? परमेश्वर मुझसे हमेशा कहा करता था, हमेशा मैं उसकी ऐसी आवाज को सुनती थी कि मैंने तेरे लिए अपने जीवन को दे दिया है, इसके बदले में तू क्या देगी. Immediately within my heart I used to say, God, I have nothing but I have only one life. That life I will give it to thee. अपने हृदय के अंदर ही अंदर मैं ऐसे कहा दिया करती थी कि हे प्रभु, मेरे पास तुझे देने के लिए तो कुछ भी नहीं, केवल एक ही जीवन है और वह मैं तुझे अर्पण करती हूँ. But as days passed by, as my whatever I did was coming into prosperous, I wanted to live another life. लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए और जो कुछ भी मैं करने लगी उसमें मैं सफल होती जा रही थी, इसके द्वारा मेरा जीवन का मन बदल गया. I was having a mind of service. मेरे अंदर एक नौकरी करने का मन था.
I wanted to serve the poor people. मैं गरीबों की सेवा करने के लिए चाहती थी। So I wanted to join in some other Mother Teresa mission so that I may go and serve the people. इसलिए मैं चाहती थी कि मदर टेरेसा के मिशन या और किसी मिशन में मैं भाग लूं और लोगों की सेवा करूं। So without the knowledge of my parents, I had given application and everything turned to be futile. मेरे माता पिता के अनजान में ही मैंने वहाँ पर एप्लीकेशन भर दी और सब कुछ असफल हो गया। And after that, I thought I should earn money somehow and get a good job and somehow help people with that money. उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक अच्छी नौकरी करूं और पैसा कमाऊं और उस पैसे के द्वारा मानवता की सहायता करूं। So I spent maximum and lot of money for all the examinations and for all the possible interviews. इसलिए सब प्रकार की परीक्षाओं के लिए, सारे इंटरव्यूज के लिए मैंने जितना अधिक हो सकता है उतना अधिक पैसा खर्च किया। But even then, everything turned to be futile. लेकिन सब कुछ व्यर्थ हो गया। I knew that Jesus has a different plan for me. मैं जानती थी कि यीशु का मेरे बारे में और अन्य योजना But थी। I was not surrendering for that. लेकिन मैं उसके लिए अर्पण नहीं कर रही थी। But it so happened to 2-3 incidences, God reminded me of His calling. लेकिन 2-3 घटनाओं के द्वारा परमेश्वर ने मुझे अपनी बुलाहट के बारे में स्मरण कराया। The Lord had called me with the calling saying, Thou art precious in my sight, thou art honorable, and I have loved thee, therefore will I give men for thee and people for thy life. परमेश्वर ने मुझे बुलाहट में ये वचन दिया था कि तू मेरी दृष्टि में अनमोल और प्रतिष्ठित है और मैं तुझसे प्रेम करता हूँ, इस कारण मैं तेरे संति आत्माओं को तेरे प्राण के बदले में लोगों को दूंगा। Thus, through an incident, I surrendered my life, forsook all the things which I was doing in this world, forsook my parents and came and stepped out to serve God. ऐसे कुछ घटनाओं के द्वारा मैं अपने आप को अर्पण कर दिया, मेरे माता पिता को, मेरे कामकाज को, सब कुछ छोड़ देते हुए प्रभु की सेवा करने के लिए मैं निकल पड़ी। Really, I can tell, I'm a true witness saying that Jesus is the only God whom we can serve. सच में मैं इस बात की एक सच्ची गवाह हूँ कि यीशु ही केवल एक परमेश्वर है जिसकी हम सेवा कर सकते हैं। And the world and the things of this world are vanity. और इस संसार की चीजें माया है। And only love which extends and is eternal is the love of God. केवल प्रेम जो नित्य प्रेम है वो परमेश्वर का ही प्रेम है। After I came to the ministry, I fell sick. सेवकाई में आने के पश्चात मैं बीमार पड़ी। And I thought I was in a state that I was supposed to die. और मैं एक ऐसी हालात में आ गई थी कि मैं मरने की हालत में आ गई। But that very particular morning, लेकिन एक सुबह God spoke to me through Psalms. परमेश्वर ने मुझसे भजन संहिता के द्वारा बात की। Thou shalt not die but declare the works of God. तुम नहीं मरोगे परंतु परमेश्वर के कार्यों का वर्णन करोगे। God healed me and took me to many places to be a living witness and declare the works of God. परमेश्वर ने मुझे चंगा किया और परमेश्वर के कामों का वर्णन करने के लिए, उसके गवाह बनने के लिए वह मुझे कई स्थानों में लेकर गया। Dear youths, प्रिय जवानों and dear listeners, और प्रिय सुनने वालों, I am the true witness मैं सच्ची गवाह हूँ for my Jesus Christ. मेरे यीशु मसीह के लिए। The things of this world, इस संसार की चीजें, the love of the parents, माता पिता का प्रेम, the love of the friends, और दोस्तों का प्रेम, everything in this world इस संसार का सब कुछ will take wings and fly away. ये सब कुछ पल में हट जाएगा। But the love of God endureth forever. लेकिन परमेश्वर का प्रेम सदा बना रहेगा। So if you have a call to serve God, इसलिए यदि आपको परमेश्वर की सेवा करने के लिए बुलाहट है this तो is the best service we can do for God. ये परमेश्वर के लिए हम करने वाली सबसे श्रेष्ठ सेवा है। And there is no other greater joy in this earth than to serve the King of Kings. और राजाओं के राजा की सेवा करने से बढ़कर और किसी भी बात में हमको इतना अधिक आनंद नहीं है। And there is no other greater blessings in this world than to be in the fellowship of the saints and to serve the saints. और संतों की सहभागिता में रहते हुए संतों की सेवा करने से बढ़कर और कोई भी बड़ा आनंद नहीं है। God has given me not only the thing which I am doing in this earth, इस पृथ्वी पर करने वाली एक सेवा को ही परमेश्वर ने मुझे नहीं दिया, but God has given me a great hope that I am going to serve my living Father, who is not a dead Father, but a living Father. I am see His face and serve Him eternally. लेकिन परमेश्वर ने मुझे ये आशा दी है कि मेरा पिता जो मरा हुआ पिता नहीं परंतु नित्य पिता है, उसकी मैं नित्यता तक सेवा करने जा रही हूँ।